Hello students, after completing a long part of theory in accounting, now I'm going to start practical portion, that is accounting equation. Before this we have completed use theory in which we have understood what is accounting, accounting system, accounting methods, accounting process, vocabulary of accounting, accounting principles and so many things. Okay? That was completely a theoretical part. Now I am going to start a practical portion. This is accounting equation. Accounting equations means क्या होता है? तो simply first of all you should know. You know very well what is equation. Equation is a mathematical term in which left hand side is equal to right hand side. So like that in accounting there is an equation of accounting of assets and liabilities. Assets and liabilities की जो equation है that shows कि asset of any business entity are always equal to its liabilities, means right hand side is equal to left hand side. क्योंकि asset और liabilities एक दूसरे के just opposite होते हैं, तो on the one side it is asset, on the other side it is liabilities. What is asset and what is liability we have already discussed. I have already explained you there are so many types of asset like fixed assets and fixed assets and current assets, या non-current assets and current assets. And current assets are also known as floating asset. Like that, there are so many types of liabilities which can be divided as long-term liability, short-term liability, internal liability, and external liability. Internal liability means liability payable to the businessman by the business, and external liability means liability of the business towards the outsider of the business. Okay, I have used only the word assets and liabilities, but in the books you will find asset equals to capital plus liability. Because of capital is internal liability and liabilities are external liabilities, so therefore I have used only word assets and liabilities. There is no difference. Okay, so what is equation in accounting term? It is accounting is an equation of assets and liabilities. Here is given accounting is an equation of assets and liabilities. Just like any mathematical equation where left hand side is equal to right hand side, like that accounting has own equation where the assets and liabilities of any business entities are always equal. Okay, then it is the foundation of the business accounting या double entry system based on the business entity. तो ये जो इक्वेशन है एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. तो व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाइल वी वर लर्निंग अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस हैज इट्स ओन एंटिटी अदर देन द बिजनेसमैन. ओके, अब मैंने आपको शायद इसको एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे तरीके से. आई ट्राइड माई बेटर कि बिजनेस की अपनी एक आइडेंटिटी होती है जो कि बिजनेसमैन से अलग होती है. अब बिजनेस की आइडेंटिटी तो अपन ने मान लेते हैं, बट विदाउट द बिजनेसमैन इट हैज नो आइडेंटिटी, बिकॉज विदाउट द बिजनेसमैन बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड. ओके, तो बिजनेस की आइडेंटिटी आपने अलग मान ली गई है एंड ऑन दैट बेसिस जो बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है that becomes the property of the business, therefore it is a asset of the business, and on the other hand the money is provided by the businessman, therefore it is liability of the business to pay him in future. तो यहीं से बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू होती है कि जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो वो पैसा जो एक पर्टिकुलर चीज है वही पैसा बिजनेस के लिए असेट होता है, तो ऑन द अदर हैंड वही पैसा बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है. तो वॉट एवर इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द बिजनेसमैन become the asset of the business and the same amount become the business liability of the business. तो यहां से हमारी इक्वेशन स्टार्ट होती है. आफ्टर दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यूअल इफेक्ट ऑन द बिजनेस. ठीक है, तो ड्यूअल इफेक्ट का मतलब होता है कि हर अकाउंट कम से कम हर ट्रांजेक्शन मिनिमम 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है, जिसमें एक को हम डेबिट बोलते हैं, दूसरे को क्रेडिट. ठीक है, एंड डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल.
तो ये भी वही चीज आ रही है कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन का ही हिस्सा है, जहां पे एक ट्रांजेक्शन होता है जिसके दो इंपैक्ट्स बिजनेस के ऊपर होते हैं, जिसमें से एक को आप डेबिट करते हैं मतलब लाइक असेट, और दूसरे को आप क्रेडिट करते हैं लाइक लायबिलिटी। तो उस ट्रांजेक्शन में असेट की वैल्यू जितनी होगी मतलब डेबिट की वैल्यू जितनी होगी, उतनी ही वैल्यू लायबिलिटी की होगी मतलब क्रेडिट की वैल्यू होगी। ओके, तो यहां पर वही कुछ लिखा हुआ है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द बिजनेस एंटिटी एंड ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एवरी डेबिट हैज कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। हर डेबिट की एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी होगी और दोनों की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज इक्वल होगी। Therefore, total debits will always be equal to total credits. तो जितना आप डेबिट करेंगे एग्जैक्टली अमाउंट, उतना ही अमाउंट हमेशा क्रेडिट भी होगा। तो ऑन दिस बेसिस आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होगा। दैट वुड बी द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस विल ऑलवेज बी इक्वल। Every transaction will have any of the following effects. Whatever transaction you do in the business, this will have any of the following effect on the assets and liabilities of the business, and that will create the business equation, accounting equation, and that will make the equation balanced. After every transaction, the business equation or accounting equation will be balanced. The first transaction, the first effect may be increase in one asset with decrease in another asset. When you do the transaction, okay, so it may affect your asset, two affect simultaneously. One will decrease, the other will increase. It means there is no effect on the liability, and what is the effect on asset will be nil, because there is increase in one asset and with the same value decrease in another asset. तो टोटलिटी में अगर आप चेक करेंगे तो आपकी जो असेट है उस पर नेट इफेक्ट जीरो होगा और लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट आया ही नहीं है। तो उसका इफेक्ट ये होगा कि आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। सेकेंड इज इंक्रीज इन असेट विद इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ द सेम वैल्यू। व्हेन यू डू द ट्रांजेक्शन देयर विल बी इंक्रीज इन असेट एंड देयर इज इंक्रीज इन लायबिलिटी विद द सेम वैल्यू। तो जितना आपकी असेट में इंक्रीज हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही आपकी लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है। इट विल मेक योर इक्वेशन बैलेंस्ड। ट्रांजेक्शन यहां पे मैंने लिखे हुए हैं फॉर एग्जांपल, जिनको आप समझ सकते हैं। फर्स्ट इज परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो वॉट एवर यू परचेज दैट बिकम्स योर प्रॉपर्टी एंड फॉर दैट यू आर पेइंग कैश। कैश इज ऑल्सो अवर असेट and the things which we are purchasing, that is also our asset. So one is increasing, means your stock will increase and your cash will decrease. Impact asset per zero and there is no effect on liability, your equation will be balanced. Then second transaction जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, purchased goods on credit. You have purchased goods, it will increase your asset, but at the same time we are not making any payment. It means there is no other asset, other effect on the asset. Now what will happen? We have purchased goods on credit. Credit means we have to make payment in future. So any obligation which we have to meet in future becomes our liability. So there is one effect on asset and the other on liability. Either मेरी asset बढ़ रही है और simultaneously I have taken an obligation to pay in future, that is my liability. तो liability भी बढ़ रही है। तो जितनी मेरी यहाँ पे असेट बढ़ी है उतनी ही यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू दैट मेरी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी, क्योंकि जितना असेट में इंक्रीज हुआ है एग्जैक्टली लायबिलिटी भी उतनी ही इंक्रीज हुई है। थर्ड, डिक्रीज इन असेट विद डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ द सेम वैल्यू। बिफोर दिस increase in asset, increase in liability, but it may also happen decrease in asset and decrease in liability. Okay, तो here if we pay to the creditor, suppose करें जो पहला ट्रांजेक्शन था उसी में मैंने अब अपने जो क्रेडिटर्स हैं जिनको मुझे पैसा देना था उनको मैंने पेमेंट किया, तो my liability will come down because I have made the payment, and on the other side I have paid cash to him. मैंने जो क्रेडिटर को पेमेंट किया वो क्या पे किया है, कैश। तो कैश पे करने से मेरी कैश मतलब असेट कम होगी, साथ में मेरे ऑब्लिगेशंस जो है वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि मैंने उसको फुलफिल कर दिया है। तो यहां पे भी मेरी जो इक्वेशन है वो क्या हो रही है, बैलेंस्ड हो रही है।
असेट कम हो रही है, लायबिलिटी भी कम हो रही है। इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। फिर आते हैं इंक्रीज इन असेट विद इंक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी, दैट इज considered or that is assumed as internal liability of the business due to separate entity principle or business entity concept. तो यहां पे लिखा हुआ है increase in asset with increase in capital. It means the businessman if introduce further capital in the business, okay, कि बिजनेसमैन को बिजनेस में पैसे की और जरूरत थी, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, either we can borrow from the outside or we can invest out of our pocket. तो अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अपने घर से लाके और पैसा इन्वेस्ट करता है, what will happen? Cash will increase or asset will increase, and on the other hand his capital will also increase because he had given more capital. So capital is the liability of the business, on the other hand he has given cash for the capital, तो asset भी यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन में आपकी एक असेट इंक्रीज हुई और दूसरी आपकी लायबिलिटी कैपिटल के नाम पर जो है इंटरनल लायबिलिटी, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। उसके बाद एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि डिक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, देयर आर सो मैनी सिचुएशंस businessman withdraw money for his personal use from the business, which is called drawings. This we have already learned in previous videos. ठीक है, जहां पे मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताया था, कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज ड्रॉइंग्स। तो इफ द बिजनेसमैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, व्हाट विल हैपन? ठीक है, कैश विल डिक्रीज। अगर वो कैश निकाल रहा है तो कैश विल डिक्रीज, अगर वो गुड्स निकाल रहा है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है अपने बिजनेस से, तो स्टॉक विल डिक्रीज। बोथ ऑफ देम आर अवर असेट, आइदर कैश और गुड्स विल डिक्रीज बिकॉज क्योंकि वो अपने घर ले जा रहा है, उसको यूज कर रहा है। ऑन द अदर हैंड बिजनेस ऑब्लिगेशन विल कम डाउन बिकॉज वट एवर अमाउंट वॉज गिवन टू द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन टू द बिजनेस, दैट विल रिड्यूस। जैसे अगर उसने इनिशियली 1 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया था और उसमें से अगर उसने 10,000 रुपी विड्रॉ कर लिया बिजनेसमैन ने, तो नाउ बिजनेस हैज टू रिटर्न ओनली 90,000, नॉट 1 लाख रुपीज। तो इस तरीके से अगर वो पैसा बिजनेस से अपने पर्सनल काम के लिए विड्रॉ करता है, तो एक तरफ हमारी असेट कम होती है, तो दूसरी तरफ कैपिटल भी कम हो जाती है, विच इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, एंड इक्वेशन बैलेंस होती है। तो किसी ट्रांजेक्शन से कैश और कैपिटल बढ़ सकते हैं, मतलब असेट और कैपिटल बढ़ सकता है, तो दूसरे किसी ट्रांजेक्शन में जिसमें पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, वहां पे कैश और कैपिटल कम भी हो सकता है। उसके बाद इंक्रीज इन वन लायबिलिटी विद डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी ऑफ द सेम वैल्यू। जब हम यहाँ पे लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इन जनरल जो बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट इज द एक्सटर्नल लायबिलिटी, नॉट द कैपिटल। ओके, तो इंक्रीज इन वन लायबिलिटी विद डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। अब हमारे यहां पर जो इफेक्ट आएगा, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो है वो असेट साइड में नहीं है, नॉट एट ऑल। इट इज अफेक्टिंग ओनली द लायबिलिटी साइड। वन लायबिलिटी इन इंक्रीजिंग एंड द अदर लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग विद द सेम वैल्यू। तो टोटलिटी में देयर इज नील इफेक्ट और जीरो इफेक्ट ऑन द लायबिलिटी साइड एंड देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल ऑन द असेट साइड। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस हो जाएगी। मतलब यहां पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, वहां पर कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। जो भी इफेक्ट आ रहा है वो राइट हैंड साइड में आ रहा है, और राइट हैंड साइड में अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो इफेक्ट दो जगह है, एक दो अलग अलग लायबिलिटीज के बीच में, जिसमें एक लायबिलिटी कम हो रही है और एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जस्ट लाइक इसमें जो एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं वो ये है कि क्रेडिटर्स जो हैं, जिनको हमें इंस्टेंटली पैसा चुकाना है महीने 2 महीने में, दे आर नोन एज क्रेडिटर। अगर वो हमको वही अमाउंट लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये है कि वो कहते हैं कि ठीक है, ये पैसा हम आपको 3 साल के लिए कर देते हैं, मतलब अब आपको 3 या 4 साल बाद इसका पेमेंट करना है, तो दिस इज ऑल्सो लायबिलिटी। दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट वाज द
शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, अदर वन इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो पैसा मुझे 3 महीने में चुकाना था, नाउ आई हैव टू पे इट आफ्टर 3 years। तो ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गई। तो मतलब ये क्रेडिटर्स से कन्वर्ट होके एक नए नाम से, लोन के नाम से आ जाएगा। तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, टोटल लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। इसी तरीके से एक और चीज होती है बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। ये कंसेप्ट है जो हम आगे इन फ्यूचर चैप्टर में पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा आपको आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें आप इस टर्म को ज्यादा बेटर तरीके से जान सकेंगे। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि क्रेडिटर्स हमारे ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है जिसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अब डायरेक्ट क्रेडिटर को पेमेंट ना करते हुए उस इंस्ट्रूमेंट के लिए उसको पेमेंट करेंगे। तो यहां पे भी नाम चेंज हो रहा है, सिर्फ क्रेडिटर्स विल बिकम बिल्स पेबल। मतलब दोनों ही लायबिलिटी हैं, क्रेडिटर के नाम से कम होकर वो बिल्स पेबल के नाम से एक नई लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी एंड देयर इज नो इफेक्ट, नील इफेक्ट इज ऑन असेट, liability and no effect on asset. Ultimately our equation will be balanced. उसके बाद है increase in capital will decrease in capital with the same value. ये भी एक इफेक्ट है। आपके ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसमें ऐसा भी कोई ट्रांजेक्शन हो सकता है जो टोटलिटी में अल्टीमेटली सिर्फ कैपिटल को ही अफेक्ट करता है। ठीक है, एंड अदर देन कैपिटल देयर इज नो इफेक्ट ऑन एनी लायबिलिटी और एनी असेट। सिर्फ कैपिटल में ही इफेक्ट आ रहा है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि जितना कैपिटल में प्लस होना चाहिए उतना ही कैपिटल में माइनस भी होना चाहिए, तभी हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? वट एवर अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इज नोन एज कैपिटल इफ बिजनेस प्रोवाइड हिम इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। ठीक है, तो वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है, थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इट हैपेंस इन जनरल। तो इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप जहां पे मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को अलग अलग माना जाता है, बिजनेस और बिजनेसमैन को, बट प्रैक्टिकली दे आर नॉट सेपरेट। तो इसका मतलब ये है कि मैंने मेरे बिजनेस में जो पैसा लगाया है मैं अपने बिजनेस से अपनी कैपिटल के ऊपर ब्याज ले रहा हूं, तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो मेरी ही पॉकेट से निकल के मेरे ही पास आएगा। ठीक है, मतलब निकलेगा भी मेरी पॉकेट से और आएगा भी मेरी ही पॉकेट में, क्योंकि बिजनेस मैन, जो बिजनेस का मालिक हूं वो मैं हूं, बिजनेस भी मैं ही हूं। एज बिजनेस मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो एज बिजनेसमैन मुझे वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो one side it will decrease my capital, on the other side it will increase my capital। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं दे इंक्रीज द लॉस ऑफ द बिजनेस, और जितनी भी इनकम्स होती हैं दे इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब यहां पे जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है दैट प्रॉफिट गोज टू बिजनेसमैन। वाई? ठीक है, उसका जो लॉजिक होता है वो ये, मैं आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि इफ यू गिव मनी टू समबडी एल्स, इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट यू वांट समथिंग इन रिटर्न। ऐसे ही जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो ही हैज गिवन मनी टू द बिजनेस, तो उसके बदले में वो उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है कि उसको कोई ना कोई रिटर्न मिलना चाहिए। दूसरा ये होता है कि जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो विदाउट सैलरी, विदाउट रेम्यूनरेशन यू नेवर वर्क इन जनरल, अदरवाइज वो सोशल कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन यू डू द वर्क फॉर द बिजनेस, अब चूंकि बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग तो मान लिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, बिना बिजनेसमैन के इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता है, और बिना बिजनेसमैन के डिसीजंस के बिजनेस में कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती है। तो इन्वेस्टर इज द बिजनेसमैन एंड वर्कर इज ऑल्सो द बिजनेसमैन। बिजनेस के लिए पैसा देने वाला और बिजनेस के लिए काम करने वाला दोनों कौन होते हैं? बिजनेसमैन ही होता है। ठीक है, तो उसने जो पैसा बिजनेस में दिया है उसके बदले में उसे कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, और वो जो वर्क करता है बिजनेस के लिए उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिजनेस में जो भी अर्निंग किया जा रहा है, वट एवर इज अर्न बाय द बिजनेस, ठीक है,
उसके लिए ना तो बिजनेस ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया खुद की जेब से, ना उसने खुद ने कोई एक्टिविटी की है. एवरीथिंग इज डन बाय द बिजनेस मैन. तो इसका मतलब ये हुआ कि वट एवर इज अर्न बाय द बिजनेस, इट इज विद द हेल्प ऑफ मनी ऑफ द बिजनेसमैन एंड लेबर ऑफ द बिजनेसमैन. तो एवरीथिंग विच इज अर्न बाय द बिजनेस मस्ट गो टू द बिजनेसमैन. ठीक है, इसलिए बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाता है वो बिजनेसमैन को जाना चाहिए और वो बिजनेसमैन को जाता है. इसलिए प्रॉफिट जो होते हैं बिजनेस के, दे बिकम लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर बिजनेस को लॉस होता है तो दैट इज असेट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑफ एवरी डिसीजन वॉज टेकन बाय द बिजनेस मैन इन द बिजनेस. इफ बिजनेस को अगर उससे कोई लॉस होता है तो बिजनेसमैन से उस लॉस को वो कंपेंसेट करवाने का राइट रखता है, क्योंकि जब वो आपको सारा प्रॉफिट हैंडओवर करने के लिए तैयार है तो ऑब्वियस है कि अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है तो दैट शुड बी बोर्न बाय द बिजनेसमैन. इसलिए अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है, कोई एक्सपेंस होता है, तो दैट विल डिक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेसमैन. वो बिजनेसमैन से वसूल किया जाएगा और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो बिजनेसमैन को दिया जाएगा. ओके, तो दैट विल वन साइड जो प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा और जो लॉस होगा वो कैपिटल को डिक्रीज करेगा. तो देयरफॉर प्रॉफिट जितने भी होंगे, जो इनकम के ट्रांजेक्शंस होंगे, दे विल बी एडेड टू द कैपिटल, और जितने भी एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शंस होंगे वो सब कैपिटल को कम करने का काम करेंगे. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द फ्यूचर. जब आप इक्वेशन बनाएंगे या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पर ये सब चीजें आपको यूज में आएंगी. इसलिए आपको याद रखना है कि व्हाट जो इनकम होती है दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड एडेड टू द कैपिटल. जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज द असेट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड देयरफॉर दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. ओके, तो बिफोर दिस मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि असेट एंड इक्विवेलेंट असेट, लायबिलिटी एंड इक्विवेलेंट लायबिलिटी. जब आपकी लायबिलिटी कम होती है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू असेट. ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी जब कम होती है तो यू फील हैप्पी, और जब आपकी लायबिलिटी बढ़ती है देन यू हैव टेंशन. ठीक है, दूसरी तरफ आप देखते हैं जब आपकी असेट बढ़ती है यू एंजॉय, यू फील गुड, एंड जब आपकी असेट कम होती है तो आपको टेंशन क्रिएट होता है. तो लायबिलिटी का बढ़ना और असेट का कम होना हैव द सेम इफेक्ट ऑन द बिजनेस, एंड असेट का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना हैव द सेम इफेक्ट. तो इक्विवेलेंट असेट एंड इक्विवेलेंट लायबिलिटी मे बी इन दिस वे. दैट इज लास्ट. अब मैं आपको बता रहा हूं, यू हैव टू रिमेंबर कि असेट्स क्या होती हैं, ये मैंने डिस्कस किया था. अब आपको असेट में इन जनरल कॉमन नेम्स जो हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारी असेट होती हैं या बिजनेस में कौन कौन सी चीजों को असेट माना जाता है, वो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखी हुई है. लायबिलिटीज में कौन कौन से नाम आते हैं और एक्सपेंसेस और इनकम में कौन कौन से नाम आते हैं, ये आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ यू आर द न्यू फॉर द कॉमर्स. ठीक है, अकाउंटिंग आपके लिए नया सब्जेक्ट है, इसलिए लिटिल बिट आपको इनको लर्न करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा कि कौन सी चीज किस कैटेगरी में आती है, ताकि आप बेटर तरीके से अकाउंटिंग को समझ सकेंगे. ठीक है, तो आई हैव गिवन द नेम ऑफ असेट्स, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. आपके हाथ में जो पैसा है और आपका बैंक में जो पैसा जमा है, दोनों आपकी असेट होते हैं. उसके बाद आते हैं हम डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल. डेटर्स आई हैव एक्सप्लेन यू. Debtors means the person to whom we have sold goods on credit, जो बदले में हमें in future पैसा देंगे. Therefore they are our asset, क्योंकि वो आज उन्होंने पैसा नहीं दिया है, they will pay you in future. तो in future आपके पास कैश बढ़ जाएगा, तो that is equivalent asset today. Bills receivable is similar to debtors. Then stock, whatever you have goods or in stock that is unsold, जब आप उसको परचेज करते हैं तो वो आपकी असेट होता है. इन फ्यूचर आप उसको बेच के वापस मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं. देयरफॉर इट इज योर असेट. प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. प्लांट यू नो वेरी वेल, प्लांट इज नॉट पौधा, इट इज द फैक्ट्री सेट, शेड और लाइक दैट थिंग. मशीनरी यू नो वेरी वेल, फर्नीचर यू नो वेरी वेल. फिक्सचर मीन्स इट इज असेट लाइक फैंस और एयर कंडीशनर, कूलर, इस टाइप की जो असेट्स होती हैं दे आर नोन एज फिक्सचर्स. इलेक्ट्रिकल आइटम्स.
ओके, देन इज लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, ये नाम से ही आपको समझ में आती हैं। Investments means if you have excess money in the business, you invest outside somewhere in assets, shares of the company, in fixed deposit, in debentures of any company, etc., etc. That is advance payment or accrued income. Advance payment is known as prepayment या prepaid expenses. वो मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स में एक्सप्लेन किया था कि कुछ खर्चे जो हम एडवांस में कर देते हैं, मतलब ये है कि वी हैव नॉट रिसीव्ड द सर्विसेज बट वी हैव पेड फॉर दैट एंड सर्विसेज विल बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। तो टिल दैट यू एक्वायर द सर्विसेज, दैट इज योर असेट, ठीक है। और जिस दिन आप उसको एक्वायर कर लेंगे तो वो असेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड अक्रूड इनकम, ये भी ऐसा ही एक असेट है जहां पे यू हैव डिड द वर्क बट यू हैव नॉट रिसीव्ड द मनी। यहां पे आप काम करके अपनी अर्निंग कर चुके हैं लेकिन आपको पैसा नहीं मिला है। इट हैपन्स इन सैलरीड एम्प्लॉयज केस ऑलवेज, कि पहले आपको काम करना होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 मंथ जॉब अगले महीने में 5 या 7 तारीख तक आपको सैलरी मिलती है। इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में होता है कि उसी महीने के एंड में आपके पास आ जाती है, लेकिन 90% जो प्राइवेट जॉब होते हैं उनमें सभी में जो आपको सैलरी मिलती है वो अगले महीने में मिलती है। तो जस्ट लाइक यू हैव वर्क इन अगस्त बट योर सैलरी विल बी रिसीव्ड इन सितंबर। ओके, तो अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कहलाएगी आपकी अक्रूड इनकम, बिकॉज यू हैव वर्कड इन अगस्त, you have earned the income in August but still it is to be received, इसलिए ये कहलाएगी आपकी accrued income। ओके, तो it is also asset। फिर I'm coming to liabilities। liabilities में any type of loan which you have taken for your business, जो बैंक से भी हो सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, और आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड से भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर से भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ लोन। देन इज bank overdraft. It is a very short-term loan given by the bank to its reputed customers in certain circumstances, specific conditions. ठीक है, तो ultimately it is loan. Like creditors means the person from whom we have purchased goods on credit and we have to make payment in future. तो it is just opposite of the debtor. डेटर्स में आपने गुड्स बेचा था, यहां पे आपने गुड्स खरीदा है और आप उनको पेमेंट करेंगे। तो एवरी पर्सन फ्रॉम होम वी हैव परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड वी विल मेक पेमेंट इन फ्यूचर, दे आर नोन एज अवर क्रेडिटर। क्रेडिटर्स के साथ बिल्स पेबल है, वो क्रेडिटर्स से ही जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है। देन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, वट एवर प्रॉफिट्स यू हैव अर्न्ड और यू हैव मेक प्रोविजंस फॉर द लॉसेस एटसेट्रा, वो भी आपकी लायबिलिटी में ही आएंगे, दे आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अर्न्ड इनकम। Outstanding expenses, I have already explained you the expenses which we have incurred, but still the payment is not made. जो खर्चे मैंने कर दिए हैं लेकिन अभी तक मैंने उसका पेमेंट नहीं किया है। खर्चे करने का मतलब I have received the services, I have enjoyed the services of anybody, an institution, but still I have not paid to them. For that it is called outstanding expenses. जैसे in case of electricity bills, first you enjoy the electricity, then you make the payment in the next month. तो इस महीने में जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, बट बिकॉज ऑफ हमने पेमेंट नहीं किया है, उसका पेमेंट तब होगा when we will receive the bill. It means it is outstanding to pay. तो ये मेरी लायबिलिटी है कि मुझे उसको पे करना है। Then unearned income, income received in advance. ये it is just opposite of the prepaid expenses. ठीक है, if you receive any income but you have not given the services, means suppose you have to provide the services and the person have paid already to you money and you have not given the services to him, तो ये कहलाएगा आपका unearned income, मतलब कमाने के पहले ही, काम करने के पहले ही आपको पैसा मिल जाता है। तो you become liable to work for that or to return the money. That is money received in advance. अगर आप किसी से पैसा, या जैसे आपके कुछ कस्टमर्स होते हैं जो
आपको एडवांस में पैसा दे देते हैं। मतलब ये कि वो आपसे गुड्स खरीदना चाहते हैं एंड यू से कि वी डोंट ट्रस्ट ऑन यू, तो वो कहते हैं ठीक है हम आपको एडवांस पैसा दे देते हैं, बाद में आप हमको माल भेज देना। तो दैट इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी, बिकॉज क्योंकि हमने उससे पैसा ले लिया है, इट मीन्स वी आर बाउंड टू गिव हिम गुड्स और टू रिटर्न द मनी। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा एक ऑब्लिगेशन है कि या तो हम उनको गुड्स प्रोवाइड करेंगे या फिर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज हम उनका पैसा वापस करेंगे। तो इट इज मनी रिसीव्ड इन एडवांस। नाउ आई एम कमिंग टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। एक्सपेंसेस और इनकम में जो टर्म्स यूज किए गए हैं, बोथ वो इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो कब इनकम होगा और कब एक्सपेंस होगा? वेन एवर यू पे it is expense, whenever you receive it is income. Just like being an employer, if you pay the salary, ठीक है, तो it is an expense for you, and at the same time which is received by the employee, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगा? इनकम होगी। तो सैलरी जो है एक के लिए एक्सपेंस है तो दूसरे के लिए इनकम है। इन एवरी ट्रांजेक्शन देयर आर टू पार्टीज, और उस ट्रांजेक्शन में अगर एक के लिए कोई एक्सपेंस है तो दूसरे के लिए वो क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। सपोज करें आप एक किराए के मकान में रहते हैं या किराए की दुकान चलाते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस यू पे द रेंट एंड योर लैंडलॉर्ड रिसीव द रेंट। तो आपके लिए वो एक्सपेंस है, उसके लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो यहां पर जो एक्सपेंसेस की बात होती है, एक्सपेंसेस और असेट में दोनों में कंसेप्ट एक रहता है, लेकिन दोनों में डिस्टिंग्विश किया जाता है। असेट का मतलब होता है जिसका रिलेशन लॉन्ग टर्म से होता है नॉर्मली, एंड विच विल बी कन्वर्टेड इनटू मनी, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस का कंसेप्ट होता है दैट इज टेम्परेरी, जहां पर आप एक फैसिलिटी लेने के लिए, एक किसी चीज को एंजॉय करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, एंड दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मनी, ठीक है। तो यहां पर एक्सपेंसेस और इनकम्स में मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, वो आपको याद रखने हैं कि वो एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आप उसको पे कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस है, और इफ इट इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस देन इट विल बिकम इनकम। तो यहां पर सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है। सैलरी यू नो वेरी वेल, वेजेस इज ऑल्सो इक्वल टू सैलरी। सैलरी और वेजेस में लिटिल बिट थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस होता है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि सैलरी इज पेड फॉर द मेंटल वर्क और वेजेस इज पेड फॉर द फिजिकल वर्क। अल्टीमेटली आप अपने एम्प्लॉय को पे करते हैं, इट मे बी पेड इन द नेम ऑफ सैलरी और इन द नेम ऑफ वेजेस, है ये एक्सपेंस ही। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट, रेंट यू नो वेरी वेल, इंटरेस्ट मीन्स इफ यू बोरो द मनी और इफ यू लैंड द मनी, आइदर यू पे द इंटरेस्ट और यू रिसीव द इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है, ठीक है। इफ यू बोरो फ्रॉम द बैंक यू हैव टू पे इंटरेस्ट, इफ यू डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक विल पे इंटरेस्ट टू यू, तो दैट विल बिकम इनकम फॉर यू। देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, पोस्टेज, फ्राइट, कैरेज, कार्टेज। कैरेज, फ्रेट और कार्टेज तीनों एक ही चीज है, जहां पर आप गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चार्जेस पे करते हैं, ठीक है। ट्रक से माल बेचते हैं, बस से माल बेचते हैं, ट्रेन से आप बेचते हैं, या हाथ ठेले से आप माल बेचते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पे करते हैं वो कहलाता है आपका फ्रेट, कैरेज और कार्टेज, ठीक है। उसके बाद आते हैं पावर चार्जेस, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमने डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट इन द बिजनेस, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब आप बल्क में कोई क्वांटिटी खरीदते हैं तो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, या फिर कोई नया प्रोडक्ट बिजनेस में लॉन्च किया जाता है तो जो बिजनेसमैन होता है उसकी तरफ से डिस्काउंट ऑफर किया जाता है टू इंक्रीज द सेल्स, या फिर टू स्टैब्लिश द प्रोडक्ट इन द मार्केट वी ऑफर डिस्काउंट टू द बायर्स। ऑन द अदर हैंड जो कैश डिस्काउंट होता है वो हम डेटर को, जिनसे हमें पैसा लेना है, उनको जल्दी पेमेंट वो लोग करें हमको, फॉर मेकिंग अर्लियर पेमेंट वी ऑफर देम डिस्काउंट, ताकि वो हमको जल्दी पेमेंट करें और उस पैसे का हम यूज ज्यादा से ज्यादा कर सकें। तो दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। देन कमीशन और ब्रोकरेज, अगर हम किसी के लिए काम करते हैं और कोई हमारे लिए काम करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमारे ब्याह पर गुड्स बेचता है या हम किसी के ब्याह पर गुड्स बेचने का काम करते हैं,
तो एज रेम्यूनरेशन वी गिव और वी रिसीव कमीशन और ब्रोकरेज। देन इज रिपेयर मेंटेनेंस एंड पेट्रोल एक्सपेंसेस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन में भी हो सकता है, व्हीकल्स में भी हो सकता है, बिल्डिंग में भी हो सकता है। जैसे बिल्डिंग में हर 3 साल में आपको पेंट कराना होता है ताकि उसकी लाइफ बनी रहे, ठीक है। बीच बीच में कुछ टूट फूट होती रहती है, ऐसे ही मशीनों में होता है, गाड़ियों में होता है, जहां पे आप मैकेनिक के पास जाके कुछ पैसा खर्च करते रहते हैं। एंड दैट इज नॉट योर असेट, क्योंकि वो हर 2-3 महीने में ऐसा होता रहता है जिसमें आपकी गाड़ी को रिपेयर करके वो चलाने लायक कर देता है, फिर 2-4 महीने में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो रिपेयर का, मेंटेनेंस का और पेट्रोल का खर्चा जो है, दीज आर ऑल्सो एक्सपेंसेस। अब पेट्रोल आप भरवाते हैं तो आपके लिए एक्सपेंस है, लेकिन पेट्रोल पंप के लिए वाले के लिए वही क्या हो जाती है, इनकम बन जाती है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस और इनकम में चीजें वही हैं, सिर्फ आपको डिस्टिंग्विश करना है कि ये आपके लिए इनकम है, ये आपके लिए एक्सपेंस है। विल डिपेंड ऑन वेदर यू मेकिंग पेमेंट और यू रिसीविंग द पेमेंट, राइट। ये सारी चीज बताने के बाद अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक क्वेश्चन विद एग्जांपल, कैसे हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किस किस असेट को अफेक्ट कर रही है और कैसे हमारी जो इक्वेशन है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है।